السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ ناظرین، ہمارے ہاتھ میں مسلم پرسنل لا بورڈ کا اعلان ہے۔ انہوں نے کہاں کہاں پروگرام کرنا ہے، کب پروگرام کریں گے۔ 3 پیپر ہے، 1 پیپر اور آ رہا ہے، 4 پیپر ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو مختصر تو نہیں ہے لیکن تھوڑی طویل ہوگی، اس کو ضرور مکمل دیکھیں۔ یہ مسلم پرسنل لا کا مسئلہ ہے، کہاں کب احتجاج کیسے کرنا ہے، یہ مسلم پرسنل لا بورڈ بتا رہے ہیں۔ میں 4 پیپر نکلوایا ہوں، جو 3 ہمارے ہاتھ میں ہے، 1 اور آ رہا ہے۔ ناظرین، آج مکمل ویڈیو دیکھ کر جائیں۔ کیوں کہ جب آپ کو علم ہوگا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ جو 4 اعلان نکالے ہیں اس میں کیا کیا بتائے ہیں، وہ آپ سمجھیے اور ضرور کامنٹ کریں، شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کا کیا اعلان ہے، انہوں نے کیا کہا ہے، سماعت کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، وقف قانون میں متنازع ترمیمات پر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی وقف بچاؤ مہم 10 اپریل تا 7 جولائی 2025۔ مرکزی حکومت کی جانب سے وقف قانون میں منمانی اور خلاف دستور خلاف شریعت ترمیمات کر کے حکومت وقف کے انتظام و انصرام کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتی ہے۔ نیز ان ترمیمات کے ذریعے اس نے مسلم اوقاف کو ہڑپنے اور تباہ و برباد کرنے کا گھناؤنا منصوبہ ترتیب دے دیا ہے۔ یہ ترمیمات نہ صرف امتیاز و تفریق پر مبنی ہے بلکہ دستور ہند کی بنیادی حقوق 25, 14 اور 26 سے بھی متصادم ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ میں نے اس پر ویڈیو بھی بنایا ہے کہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے، اور اس کے خلاف وقف بچاؤ کے عنوان سے کل ہند تحریک آندولن کا آغاز کیا ہے۔ اس تحریک کا پہلا مرحلہ 10 اپریل سے شروع ہو کر 7 جولائی 2025 کو اختتام پذیر ہوگا۔ پہلے مرحلے میں کیے گئے کام اور ان کے نتائج کا جائزہ لے کر اگلا مرحلے کا اعلان کیا جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں مزید اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ یہ پوری تحریک پرامن دستوری حدود اور قانون کے دائرے میں ہوں گی۔ اس تحریک میں برادران وطن، سول سوسائٹی کے لوگوں کو بھی شامل کیا جائے گا۔ یہ تحریک شابانو تحریک 1985 کی طرز پر چلے گی، جس کے تحت ہم ہر ریاست، ضلع، شہر اور گاؤں تک پہنچیں گے۔ یاد رکھیے کہ اس تحریک کی کامیابی اسے پرامن اور مستقل مزاجی کے ساتھ مسلسل چلانا ہی ہے، تاکہ ایک طرف بی جے پی اور شرپسند عناصر کی جانب سے متنازعہ وقف ترمیمات کی حمایت میں جو بے بنیاد لوگ اور گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس کا سد باب ہو سکے۔ بیدادنان وطن کی دل و دماغ سے شکوک و شبہات کو دور کیا جا سکے، مسلمانوں کو ان متنازع ترمیمات کی قباحتوں اور خباثتوں سے واقف کرایا جا سکے۔ نیز اس مہم کے ذریعے NDA حکومت پر اتنا دباؤ بنایا جا سکے کہ ان متنازع ترمیمات کو واپس لے کر سابقہ قانون کو بحال کر دے۔ مہم کے مقاصد، آئیے یہ جو مہم چلے گا، کیسے چلے گا، کہاں چلے گا اور کس طریقے سے چلانا ہے، اصول و ضوابط کیا ہوں گے، یہ مسلم پرسنل لا بورڈ اس کی بھی اعلان نکال دیے۔ نمبر 1، مسلمانوں کو ان متنازع ترمیمات کے خباثتوں، فرقہ پرستوں کے مکروہ عزائم اور ارادوں سے واقف کرانا۔ نمبر 2، برادران وطن کے ذہنوں سے حکومت اور شر پسند عناصر کے گمراہ کن پروپیگنڈے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کو دور کرنا۔ نمبر 3، دیگر مذہبی اکائیوں کو باخبر کرنا کہ اگلا نمبر آپ کی اوقافی املاک کا ہو سکتا ہے، لہذا مل جل کر اپنے بزرگوں کے ذریعے کیے گئے عطیات کی حفاظت کے لیے جد و جہد کی جائے۔ نمبر 4، ملک کے دستور کے ساتھ کھلواڑ اور مذہبی اکائیوں کو حاصل بنیادی حقوق کو پامال کرنے کی اس سازش کو عدالت کے ذریعے روکنا۔ نمبر 5، مذکورہ بالا اقدامات اور میڈیا کے مثبت اور ایجابی استعمال کے ذریعے رائے عامہ کی اس حد تک تربیت کرنا
को इस मकरूह और नापाक साजिश के खिलाफ उठ खड़े हो। मुहिम का रोड मैप। नंबर 1, तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कारवां। मुतनाज़ा वक्फ़ कानून की क़बाहतों से अहले मुल्क वाकिफ़ कराने और उसके ख़िलाफ़ राय आम्मा बेदार करने की गर्ज से तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कारवां निकाला जाएगा, जिसका आगाज़ दिल्ली से होगा। इसका पहला इजलास इंशाअल्लाह दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 22 अप्रैल को होगा और इंशाअल्लाह इख्तिताम दिल्ली के रामलीला मैदान 7 जुलाई में होगा। इस कारवां में जिम्मेदारान बोर्ड और अहम दीनी व मिली तंजीमों के रहनुमा और बिरादरान वतन की अहम शख्सियात शामिल होंगी। जिस शहर से ये कारवां गुजरेगा वहाँ एक जलसा आम का एहतमाम किया जाएगा। बिरादरान वतन के लिए अलहदा से नशिस्तें रखी जाएंगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी एहतमाम होगा। नंबर 2, रियासती सतहों पर पुरअमन धरनों का एहतमाम। हालात को पेश नज़र रखकर रियासत की राजधानी या किसी बड़े शहर में किसी मुनासिब मकाम पर रियासती सतह की मुस्लिम क़यादत धरना और गिरफ्तारी देंगी। नंबर 3, हफ्ता तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़। 11 अप्रैल बरोज़ जुमा से 18 अप्रैल बरोज़ जुमा तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ हफ्ता मनाया जाएगा, जिसके तहत मुख्तलिफ सरगर्मियाँ अंजाम दी जाएंगी, जैसे जुमा की नमाज से कबल मसाजिद में खिताबात का कार्नर मीटिंग, किसी मुनासिब मकाम पर ह्यूमन चैन का इनेकाद, पुरअमन और बिरादरान वतन के साथ राउंड टेबल मीटिंग्स का एहतमाम वगैरह। जिन रियासतों में हालात साजगार न हो वहाँ सड़कों पर रैलियाँ वगैरह निकालने से परहेज किया जाए। 30 अप्रैल को रात 9 बजे तमाम लोगों से अपील की जाती है कि वो आधे घंटे के लिए बतौर एहतजाज अपने घर, फैक्ट्री, ऑफिस की लाइट बंद कर दे और अपना खामोश एहतजाज दर्ज कराए। नंबर 5, ज़िली सतह पर धरनों का एहतमाम। हर रियासत के अहम ज़िली हेडक्वार्टर्स पर यह शर्त के हालात पुरअमन हो एहतियाजी धरनों का एहतमाम किया जाएगा। किन अजला में धरना दिया जाएगा उसका फैसला रियासती कन्वेनर्स करेंगे। इन धरनों के बाद सूरत जमहूरिया को DM के तवस्सुत से मेमोरेंडम भेजा जाएगा। कोशिश की जाएगी कि इन धरनों में बिरादरान वतन की भरपूर शिरकत हो। इन धरनों में शुरका के हाथों में प्ले कार्ड हो जिनमें मुतालबा किया जाएगा कि मुतनाज़ा वक्फ तरमीमात वापस ली जाएं। नंबर 6, शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मुल्क के 50 बड़े शहरों में कुल जमाती प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जाएगा। अलबत्ता प्रेस का बयान मुसव्वदा अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी में बोर्ड की जानिब से फराहम किया जाएगा। ये शहर दर्ज झेल होंगे: दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद, इलाहाबाद, जयपुर, जोधपुर, सीकर, अहमदाबाद, बड़ौदा, मालियाकोटला, अमृतसर, श्रीनगर, भोपाल, रायपुर, रांची, पटना, मुजफ्फरनगर, गया, अररिया, मुंबई, औरंगाबाद, नागपुर, नांदेड़, अकोला, जलगांव, हैदराबाद, करीमनगर, निजामाबाद, विजयवाड़ा, करनौल, विशाखापट्टनम, बेंगलोर, गुलबर्गा, मंगलोर, मैसूर, हुबली, धारवाड़, टंकोर, चेन्नई, वेलोर, कोयम्बटूर, कालीकट, तलेश्वर, कोचेन, थिरुवनंतपुर, कलकत्ता, मालदा, मुर्शिदाबाद, गुवाहाटी, सिलचर, बदरपुर। नाज़रीन, नाम लेने में चूक भी हो गई होगी, माफ कीजिएगा। नंबर 7, बिरादरान वतन के साथ राउंड टेबल मीटिंगों का इनेकाद। बड़े शहरों में बिरादरान वतन के साथ राउंड टेबल मीटिंगों का इनेकाद किया जाएगा ताकि हुकूमत और फिरका परस्तों की तरफ से वक्फ इमलाक, वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल के मुतालिक जहरीले प्रोपेगंडे के जरिए जो गलत फहमियां पैदा की गई है उनका इजाला हो सके और उनके जहनों को साफ किया जा सके। नंबर 8, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल। इस मुहिम के दौरान मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। प्रिंट मीडिया पर अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू जुबान के अलावा इलाकाई जुबानों में वक्फ तरमीमात के जरिए वक्फ कानून के साथ जो छेड़छाड़ की गई है उसे औकाफी इमलाक और वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल कारकर्दगी जो मुज़िर असरात पड़ेंगे इन्हें वाज़ेह किया जाएगा। सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा।
इस दरमियान एक्स पर हैशटैग कैंपेन भी चलाई जाएगी, इसको भरपूर तशहीर किया जाएगा। मज़कूरा तमाम कामों को बोर्ड की जानिब से मुतय्यन करदा टीम अंजाम देंगी। नंबर 9, खवातीन के सिलसिले में आइए क्या कह रहे हैं। खवातीन के जरिए मुहिम, कोशिश की जाएगी कि मज़कूरा बाला तमाम प्रोग्रामों में खवातीन की भरपूर शमूलियत हो। खवातीन की जानिब से मुतवाज़ी प्रोग्राम्स भी मुनक़िद किए जाएंगे, जिनकी निगरानी बोर्ड की वैम्स वैंग करेगी। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ वैम्स वैंग की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम भी किया जाएगा। नंबर 10, दूसरे मजहबी अवकाफ के मुंतज़िमीन के साथ नशिस्त। दूसरी मज़ाहिब जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, जैन और बुद्ध के अवकाफ के मुंतज़िमीन के साथ मीटिंगें की जाएंगी और इन्हें हम ख्याल बनाकर हिंदुस्तान की तमाम मज़ाहिब के अवकाफ की हिफाजत के लिए एक हमागीर मनसूबा और प्रोग्राम बनाकर इस पर अमल किया जाएगा। नंबर 11, रामलीला मैदान दिल्ली में प्रोग्राम। पहले मरहले का इख्तितामी प्रोग्राम दिल्ली के रामलीला मैदान में एक जलसा आम की शक्ल में होगा। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में लोगों को शरीक किया जाएगा। मुसलमानों की तमाम दीनी व मिल्ली जमातें और तमाम मकातिब फ़िक्र के साथ कोशिश की जाएंगी। तमाम अहम सेकुलर सियासी जमातों की सरबराहान और अरकान पार्लियामेंट बिलखुसूस GPC में मौजूद अपोजिशन पार्टियों के नुमाइंदों को शिरकत की दावत दी जाएंगी। इसके अलावा दीगर मज़ाहिब के अहम शख्सियात, अक़लियती रहनुमा, सिविल सोसाइटी के अहम अफराद, दलित, आदिवासी, ओबीसी रहनुमा, इंसाफ पसंद अहम अफराद को बतौर ख़ास इसमें मदऊ किया जाएगा। अहम हिदायत, आइए अब हिदायत क्या है उसको भी समाअत फरमाइए। नंबर 1, कोशिश की जाएगी कि शाह बानो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिस तरह मुल्क गिर तहरीक चलाई गई थी, इन्हीं खुतूत पर इस बार भी हालात की रियायत करते हुए हर शहर, मोहल्ले, मसाजिद में प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। नंबर 2, यहाँ ये बात बतौर ख़ास वाज़ेह करनी है कि हमारा एहतजाज हुकूमत के ख़िलाफ़ है, न कि किसी कौम और तबके के ख़िलाफ़। इसलिए एहतजाजी प्रोग्रामों का फोकस मुतनाज़ा वक्फ़ तरमीमात और उसके ज़रिए वक्फ़ कानून को पहुँचने वाले नुकसान पर ही रहेगा। तमाम बड़े इजलासों में बिरादरान वतन की इंसाफ पसंद अफराद को ज़रूर मदऊ किया जाए। नंबर 3, एहतजाजी जलसों के दौरान मुतय्यन नारे मुहज़्ज़ब अंदाज में लगाए जाएंगे और कोई इश्तियाल अंगेज नारा नहीं लगेगा। नंबर 4, उन रियासतों में जहाँ के हालात नासाजगार या मखदूश हो, सड़कों पर कोई रैली या जुलूस नहीं निकाला जाएगा। सिर्फ ह्यूमन चेन बनाई जाएगी जिसमें अवाम के हाथों में प्ले कार्ड होंगे। नंबर 5, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड तमाम रियासतों के लिए एक मुंतजिमा कमेटी तश्कील देगा और उसका एक कन्वीनर मुतय्यन करेगा। कन्वीनर की हिदायत के मुताबिक ही तमाम प्रोग्राम्स अंजाम दिए जाएंगे। अलबत्ता इलाकाई और मकामी सतह पर दीगर दीनी और मिली तंजीमें भी अपने तौर पर प्रोग्राम रख सकती है। इस एहतियात के साथ तारीखों में कोई मुतसादिम न हो। मौलाना खालिद सफुल्लाह रहमानी, सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड। मौलाना फजल रहीम मुजद्दिदी, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड। डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास, कन्वीनर मजलिस अमल बराए औकाफ, मरकजी इंतजामिया कमेटी। तो नाज़रीन, ये मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से ऐलान आया है। आप लोगों से गुजारिश है कि मुकम्मल समाअत करें और दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।